Assalamu alaikum. Acha students, today we are going to. Sir, your screen is not visible. Okay, wait, just one second. So, okay, students, today we are going to start this paper. This is MCQ paper, March 21 question paper 22. आपका जो अपना variant है. Now we are going to start it from question number one. The student has a measuring cylinder containing water and also has a balance. Which of these could she use to find the volume of a small metal sphere? तो मेटल स्फीयर का अगर वॉल्यूम हमको निकालना है तो हमें बैलेंस की ज़रूरत नहीं है. शी हैज़ नो अदर apparatus. Either the measuring cylinder containing water or balance, the measuring cylinder containing water only, the balance only, neither the measuring cylinder or balance. तो बेसिकली हमें measuring cylinder चाहिए, हम उससे बैलेंस उससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. बैलेंस की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना है. The ball hits a bat with velocity 30 meters per second and leaves the bat traveling with velocity 20 meters per second in the opposite direction. The ball is in contact with the bat for 0.1 second. यहाँ पे हमारे पास ये एक बैट है, इसके ऊपर बॉल आके हिट करती है 30 के साथ और बॉल हिट करके वापस जाती है 20 मीटर्स पर सेकंड के साथ, बट विद अ नेगेटिव साइन. एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगी. एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? इट इज -20. नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है. इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच? 30 डिवाइडेड बाय टाइम इज व्हाट? 0.10. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? कैन यू प्लीज फाइंड इट फॉर मी? इट्स बाय द वे -50 अपॉन 0.1. डी आंसर होना चाहिए बेटा इसका. So this is D. A train begins a journey from a station and travels 60 kilometers in a time of 20 minutes. What is the average speed? यहाँ अगर हम देखें तो मीटर्स पर सेकंड है. इसका मतलब है कि हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा. तो 60 किलोमीटर्स ओवर 20 मिनट्स. तो 60 किलोमीटर का मतलब है 60,000 मीटर और 20 मिनट्स का मतलब है 20 टाइम्स 60. तो बेटा इसको सॉल्व करें. 1000 upon 20, which will give you 50. So beta 50 meters per second would be the right answer. So the answer is C. Which statement about the mass is correct? The mass of 10 kg weighs 1 newton near the surface? No. Mass is a gravitational force? No. Mass increases? No. Mass remains everywhere in the universe. The greater the mass of the body, the more it resists a change in its motion. The answer is yes. And this property is called what? Inertia. Inertia is ability of an object to resist any change. Question number 5. A small bottle has a mass of 20 grams when empty. The volume of the bottle is 10 cm cube. When full of liquid, the total mass is 150 gram. What is the density of the liquid? So density would be equal to mass upon volume. So it would become 130 grams. And what is the volume? It is 10 cm cube. So it would become 13 gram per cm cube. So the answer for question number 5 would be C. It's very easy. Question number 6 is an object of mass 0.8 kg is moving in a straight line at a velocity of 2 meters per second. A force is exerted on the object in the direction of motion for a period of 1 minute and its velocity of the object increases to 6. What is the force exerted on the object? तो हमें पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. सो 0.80 kg. A is what? Final velocity minus initial velocity. So it has been increased to 6 minus 2 divided by time is what? 60 seconds. तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे and we do get 0.8 into 4 upon 60. सो बेटा इसको सॉल्व करके प्लीज अपडेट करें क्या आंसर आ रहा होगा. 0.053. 0.053. So it would be A. So this is Newton's. Question number 7. An object moves at a constant speed in a circular path shown.
even though the objects की speed जो है वो constant होगी, its velocity is not constant because its velocity is changing every time. यहाँ पे ये velocity है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ ये है, so velocity is changing all that, ठीक है, लेकिन जो speed है वो constant रहेगी. So what is the statement correct about the point P? Its acceleration is in the direction of arrow X. No. Acceleration is towards Y. No. ये velocity की direction होगी. Acceleration is in the direction Z. Yes. The object is not accelerating. No. और whenever the object is moving in a circular orbit, तो जो net force होती है, it is towards the center of circle, as well as जो acceleration होती है, that is also towards the center of the circle. ठीक है? So that's why answer is C here. Question number 8. An object is pivoted at point P. A student ties a length of the string to a peg on an object. He pulls the string with a force F. What is the moment of the force about the point P? Moment का मतलब होता है force multiplied by perpendicular distance. So perpendicular distance का मतलब होता है जो 90 degrees पे act करे. So वो basically जो 90 पे act कर रहा है वो आपके पास distance x है. So it would be Fs. ठीक है, बाकी perpendicular distances नहीं है आपके पास. A gas molecule strikes a wall of a container. The molecule rebounds with the same speed. What happens to the kinetic energy and what happens to the momentum? जाते हुए momentum positive है, वापस आते हुए momentum negative लेंगे हम. So अगर जाते हुए positive है, वापस आते हुए negative है, momentum तो vary कर गया, but because velocity जो थी, let's suppose वो जाते हुए थी positive ही, वापस आते हुए है negative ही, तो चूंकि half m v स्क्वायर लिया जाता है, तो चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर लेके इट वुड ऑल बिकम पॉजिटिव. इस तरीके से मेरा आंसर जो है वो होगा कि काइनेटिक एनर्जी स्टेज द सेम एंड मोमेंटम वुड बी चेंज बिकॉज डायरेक्शन हैज बीन चेंज्ड एज वेल. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का इट वुड बी सी. क्वेश्चन नंबर 10. A horizontal force pulls a box along a horizontal surface. A box gains 30 joule of kinetic energy and 10 joule of the thermal energy is produced by the friction between the box and the surface. How much work is done by the force? तो देखें, अगर एक बॉक्स के ऊपर हमने वर्क डन किया, 10 जाउल वेस्ट हो गया और 30 जाउल इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब ये है कि हमने ओवरऑल 40 जाउल्स का वर्क डन किया था ऑन एन ऑब्जेक्ट. Question number 11. A crane is used to lift loads vertically. The output power of the crane to lift a car is P. The crane then lifts a lorry which has 3 times the weight of the car through 0.25 the distance in 0.5 of the time. What is the output power of the crane now? देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. पावर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम. अब वर्क डन किसके बराबर होता है? mgh अपॉन टाइम. अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि नए वाले केस के अंदर जो mgh अपॉन टाइम है उसमें क्या हो रहा है. सो नया मास कितना है? इट इज 3 टाइम्स, सो इट इज एक्चुअली 3 mg. हाइट कितनी है? हाइट इज 0.25 h और टाइम कितना है? इट इज 0.550. इफ आई जस्ट सॉल्व इट ऑल, व्हाट वुड आई गेट? mgh अपॉन t तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो फैक्टर है आपके पास 3 इंटू 0.25 अपॉन 0.5, तो बेटा ये क्या वैल्यू बनती है? ये प्लीज बताइएगा. 3 टाइम्स 0.25 अपॉन 0.5. 3/2. 3/2, so it would be B. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा B, बिकॉज mgh अपॉन t हमारे पास P के इक्वल था. सो ये पूरी चीज़ आपको 3/2 दे रहा है और mgh अपॉन t आपको P दे रहा है. सो इट वुड बी हाउ मच? इट वुड बी 3/2 P. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12. अब ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड मैनोमीटर एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस एनी मोर बिकॉज इट्स एन ओल्ड पेपर, सो वी आर गोइंग टू रिमूव इट, और इसको हमने इग्नोर कर दिया. Question number 13. The diagram shows a box of the dimension 6 times 8 times 4. The box rests on a flat horizontal surface.
On which face must the box rest in order to exert the least pressure? So ये solid के केस के अंदर pressure जो है this is equal to force upon area. So if you want to make the pressure least, the area should be highest. So area highest कब होगा? We have to calculate. या मेरे पास ये वाली side जो है it is 8 times 4. ये जो frontal side है this is 4 times 6. ये जो top वाली side है this is 6 times 8. So this is 32, this is 24 and this is 48. So जिस तरह से पड़ा हुआ है उसी तरह से पड़ा रहेगा तो हमारे पास प्रेशर जो है वो लीस्ट आएगा ए होगा। ठीक है, बाकी हर केस के अंदर आपके पास प्रेशर जो है वो इससे ज्यादा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, air in a sealed syringe is slowly compressed by moving the piston, the temperature of air stays the same। तो ये वाली लॉजिक लगेगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आप ये वाला लगा सकते हैं। अब जब हमने कंप्रेस किया है इसको तो वॉल्यूम हमारा कम हो गया तो प्रेशर को इंक्रीज हो जाना चाहिए। द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेस डिक्रीजेस, नो, it should increase because its molecule now hit the wall syringe more frequent. Yes, the answer is yes। एंड यहाँ पे क्या है, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग मोर क्विकली का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है। बिकॉज एग्जामिनर हैज सेड कि टेम्परेचर जो है इट डिड नॉट चेंज, इसलिए हमारे पास जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है दैट वुड बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, in an experiment small smoke particles are suspended in air and viewed through a microscope. The smoke particles move about with short random movements. Which of the following statement is correct? Air particles have large masses compared to the smoke particles. No. Air particles move at high speed compared to the smoke particle and they move in one direction. No, they move in random directions. So the answer would be D, because smoke particles are being hit by the air particles जो randomly move कर रहे होते हैं, इसीलिए उनकी haphazard motion होती है under the microscope. The graph shows how the internal energy होती है आपके पास thermal energy of 1 kg of the metal changes with temperature. What is the increase in internal energy of the block of the same metal of mass 0.25 kg when its temperature rises from 40 to 50 degrees Celsius? अब यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था दैट वाज 40, तो 40 ये था हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास ये चला गया किस पे, 50 पे। तो 50 इज समवेयर हियर सेंटर के अंदर। तो हाउ मच चेंज दैट टुक प्लेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 810 से 815, तो इसका मतलब है 815 से माइनस 812.5, सो इट इज 2.5 किलो जाउल ऑफ एनर्जी है। बट ये किसके लिए है, इट इज मेड फॉर 1 किलोग्राम। सो अगर मास आपका कम हो जाता है सो ऑब्वियसली फिर आपको थर्मल एनर्जी भी कम सप्लाई करना पड़ेगी। सो 2500 जाउल डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज 1 kg पे इतना था, 0.25 के लिए इट वुड बिकम लाइक क्वार्टर ऑफ दैट। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा सो व्हाट वुड आई गेट, इसको सॉल्व करें बेटे, इट शुड बी सी। ठीक है, 2500 का हाफ होता है 12, सर ये 4 से क्यों डिवाइड हो रहा है? बिकॉज वो इनिशियली 1 kg था आपके पास। ठीक है, ओके सर। जी बेटे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, a piece of the melting ice at 0 degrees Celsius and a beaker of boiling water are both in a laboratory at a temperature, the laboratory is at temperature of 20 degrees Celsius. What is happening to the temperature of the melting ice and what is happening to the temperature of the boiling water? अब देखें, जो आइस मेल्ट करेगी उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब भी स्टेट चेंज होती है
टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और बॉइलिंग वाटर का क्या होगा, बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सो इट शुड बी ए। अब होगा ये कि जब आपने आइस को बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जो है वो कम होने की बजाय सारी की सारी हीट जो है बॉइलिंग वाटर की वो यूज़ हो जाएगी इन ऑर्डर टू मेल्ट द आइस। तो बंसन बर्नर जो है वो कॉन्टीन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, बिकॉज अगेन जो बॉइलिंग वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था और आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो जो टेम्परेचर चेंज होगा दैट वुड बी ज़ीरो। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इट शुड बी कांस्टेंट। Question number 18. One end of the copper rod is heated. What is one method by which the thermal energy is transferred in the copper rod? ये देखें कॉपर रॉड जो है ये एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर दो तरीकों से थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक होती है पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन या फ्री या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, और दूसरा होता है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर एंड, यस। Molecules of the copper move, no, molecules of the copper do not move, they just vibrate about their mean position. That's why rest of all answers are wrong except B. Which change will cause a decrease in the rate of radiation emitted by an object? Rate of radiation का मतलब है number of radiations emitted per second। तो हम ऐसा क्या करें कि रेट ऑफ रेडिएशन कम हो जाए, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इससे टेम्परेचर रेट ऑफ रेडिएशन बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग द सरफेस टेम्परेचर, इससे भी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, चेंजिंग द सरफेस टेक्सचर फ्रॉम डल टू शाइनी, यस। चेंजिंग द फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, नो। ब्लैक करने से रेट ऑफ रेडिएशन बढ़ जाएगा, सो शाइनी से रेट ऑफ रेडिएशन कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ इन एयर ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय द नॉर्मल हेल्दी पर्सन? तो इट इज हाउ मच? देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपको पता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। जो एयर के अंदर जो हमारी साउंड ट्रेवल कर सकती है वो कितनी है, लेट्स सपोज वो है 300 मीटर्स पर सेकंड, बिकॉज ही हैज आस्क्ड फॉर अप्रोक्सीमेट। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट जो आप सुन सकते हैं वो है 20,000 हर्ट्ज। एग्जामिनर ने फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ मांगी है आपसे, तो वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे आप, सो इट इज 300 अपॉन 20,000. So what is the answer? Is it 0.015? Is that so? Please जरा confirm कीजिएगा। जी बेटा। जी सर। ठीक है, सो 0.015 को राउंड ऑफ करके एग्जामिनर ने 0.02 लिखा है, ठीक है, बिकॉज ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन जो होती है इट शुड बी एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर और एट मोस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Question number 21. What causes the change in the direction when the light travels from air to glass? जब भी लाइट एयर से ग्लास के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड जो है ना वो वेरी करती है। एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट चेंजेस, कलर ऑफ द लाइट चेंजेस, नो। द फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करती। द स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस, द आंसर इज yes. 22. The light from a torch is incident on a plane mirror. The angle of the incidence is 38 degrees. What is the angle of reflection? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या रहते हैं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। सो वो हमारे पास आंसर इसका क्या होगा बेटा, इट वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 23. टू रेज फ्रॉम विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 degrees pass into dilute and concentrated sugar water solution. The refractions are shown. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ देख के भी बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से बेंडिंग ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और स्पीड थ्रू द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड वो डिक्रीज करेगी, तो बेंडिंग ज़्यादा होगी। सो इसका मतलब है 23 का आंसर सी होना चाहिए। याद रखना है जब बेंडिंग ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, द स्पीड जो है वो ज़्यादा स्लो डाउन होती है हमारी, ठीक है। तो आंसर इज सी।
24. A thin converging lens is used to produce a sharp image of the candle. Various sharp images are produced on the screen by moving the lens and the screen backwards and forward. Which statement is always correct? The image at the principal focus of the lens. हमेशा principal focus पे नहीं बनता आपका image. The image is bigger than the object. जरूरी नहीं है. Real image small भी हो सकता है. The image is closer to the lens than the object. ये भी जरूरी नहीं है. ठीक है. द इमेज इज इन्वर्टेड, ये कंफर्म है. ये श्योर है कि आपका जो इमेज है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड. जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है और वो रियल होता है हमारे पास. विच रो गिव्स द अप्रोक्सीमेट स्पीड्स एट विच द अल्ट्रावायलेट वेव्स ट्रैवल इन एयर एंड इन द वैक्यूम. देखिए जो अल्ट्रावायलेट है, जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वैक्यूम के अंदर, दैट इज नियरली द सेम. And they are talking about the ultraviolet waves. Ultraviolet जो है these are the electromagnetic waves और इनकी स्पीड जो है that is the same which is 3 times 10 power 8 meters per second. So 25 का आंसर D हो. Question number 26. The diagram represents a sound wave. ये हमारे पास compression है, ये compression है, ये rarefaction है. What are the names of the parts of the sound wave labeled X and Y? ये half of the wavelength है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो ये x है ये कंप्रेशन है और y जो है दिस इज रेयर फैक्शन. सो 26 का आंसर जो है बेटा दैट वुड बी B. द स्पीड ऑफ द वेव इज डिफरेंट इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर. द स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड इज 1500 meters per second. Which row correctly compares the speed of the sound in ice and the speed of sound in water vapors and speed of sound in the water? अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है आइस के अंदर दैट इज मोर देन 1500 बिकॉज आइस जो है ना वो सॉलिड है, तो तकरीबन 4000 5000 6000 के लगभग होगा. और स्टीम के अंदर इट वुड बी अब देखिए लिक्विड में अगर 15 है व्हेन इट वाज प्योर लिक्विड तो इस दफा 15 क्योंकि बिकॉज स्टीम जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड वाटर, सो इट शुड बी लेस देन 1500. सो 27 का इट शुड बी सी. 28. 3 methods to demagnetize a magnet are suggested. The magnet is in east-west direction. तो जब भी आपको demagnetize करना होता है तो east-west direction में रखते हैं. तो हमने कौन-कौन से method पढ़े हुए? Hitting a magnet with a hammer, yes. Hitting to become red hot, yes. Withdrawing a magnet with a coil that has a DC current, no. It should be an alternating current. So बेटा हमारे पास आंसर जो है it should be B. पहले दो आंसर method ठीक है, बाकी गलत है. 29. 3 cores of the different metals P, Q and R are placed inside the identical coils of the wire. At least one of the metals is non-magnet. The cores are held above some iron nails. The 3 diagrams show what happens when there is a current in the coil. तो जब current in the coil होगा तो they would be attracted. यहाँ पे भी attracted है and it is not attracted. इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है कोर ये नॉन मैग्नेटिक था हमारे पास. ठीक है. अच्छा, और हमने जब करंट ओपन कर दिया तब भी अट्रैक्ट नहीं हुए. इसका मतलब ये है कि जो P और ये जो हमारे पास Q और R है ये हमारे पास मैग्नेटिक थे, जिसमें स्टील परमानेंट मैग्नेट था और जो आयरन है Q ये हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल था. तो इस केस के अंदर जो आंसर है हमारा दैट वुड बी D. तो 29 का बेटा D आंसर होना चाहिए बिकॉज इस वाले केस में these iron nails were not picked. तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा. Question number 30. 2 uncharged metal spheres X and Y rest on insulating stand and touch each other. A negative charged plastic rod is brought near to the sphere X. Using the insulated stand, sphere Y is moved away from the X. तो यहाँ पे आपके पास प्लस होना चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए व्हेन इट इज मूव्ड अवे. सो ये जो y है इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, x के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा एंड दे बोथ वुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. सो द आंसर वुड बी C फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 30 है. बाय द वे ये 30 टाइप का क्वेश्चन जो है ना ये अब आता नहीं है, इसमें पूछा नहीं जाता, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड वी कैन डू. Which two changes on a metal wire both decreases its resistance?
तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। या तो हम लेंथ कम करेंगे या एरिया ज़्यादा करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस कम होगी। लेंथ ऑफ द वायर शुड बी डिक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी इंक्रीज। सो 31 का बेटा बी होना चाहिए। 32, जस्ट वन सेकंड, ठीक है। There is a current I in the resistor of resistance R for a time t. The potential difference across the resistor is V. Which equation gives the energy? E is equal to VIT हमारे पास फॉर्मूला है। सो 32 का हमारा आंसर बेटा D बनेगा। पहला जो है वो V is equal to IR है, दूसरा P is equal to IV है, तीसरा E is equal to I square RT है, and these are all wrong। चौथा जो है ऑप्शन D, this is correct। Question number 33. A resistor R is connected in parallel with a resistor of 8 ohm resistance. The resistance of this combination is 4 ohm. What is the resistance of resistor R? तो मेरे पास 1 over RT, या बल्कि अगर हम इस तरह करें, total resistance is equal to R times 8 over R plus 8 अगर हम कर लें तो हमारा आंसर इस तरह से भी आ सकता है। तो मेरे पास जो कम्बिनेशन है वो है 4 ohm। तो it is 8R over R plus 8, 4 times R plus 8 is equal to 8R, 4R plus 8 is equal to 8R, so this is equal to 4R is equal to 8 and R is equal to 2। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जस्ट वन सेकंड, 8R, ओके, दिस वाज द इशू। प्लस 32 होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे 4R is equal to 32, so R would be equal to 8। अच्छा, हाउ डू आई गेस कि यहाँ गलती हो रही है? बिकॉज जब भी दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं तो रेजिस्टेंस छोटी से छोटी आती है। तो मतलब अगर ये 2 आ रहा होता तो टोटल रेजिस्टेंस 4 की बजाय कुछ और आनी चाहिए। यहाँ पे एक और गेस भी लग सकता है कि जब दो रेजिस्टर सेम वैल्यू के हों, लाइक 8 ओम के दो हों, तो आपका टोटल आंसर 4 आना चाहिए। तो 4 ही टोटल रेजिस्टेंस थी बाय द वे। यहाँ तक बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क प्लीज। Anyone? No question? Okay, let's move. Question number 34. A student designs a circuit to use as a dimmer switch for a lamp. What happens to the resistance of the lamp and potential difference across the lamp when the slider contact is moved from X to Y? तो X से Y की तरफ अगर आप आएंगे तो this length is decreased, resistance is decreased, the voltage is decreased, so brightness of the lamp would decrease as well. And what would happen to the potential difference across the lamp? It would also decrease. So 34 का आंसर बेटा आपके पास A होना चाहिए। 35, 35 is not a part of syllabus, logic gates नहीं आते। 36, the diagram shows an electromagnet near a coil of wire connected to a voltmeter. The reading on the voltmeter is 0. The switch is closed, the electromagnet magnetizes quickly. तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ नॉर्थ और साउथ आया, और यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी इनिशियली राइट वाली कॉइल में, जैसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिफ्लेक्शन शो होगी। व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग? इट कीप्स इंक्रीजिंग? नो। इट क्विकली इंक्रीजेस एंड स्टेज एट मैक्सिमम? नो। इट क्विकली इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस? यस। इट स्टेज ऑन 0? द आंसर इज नो। तो 36 का सी इसलिए है क्योंकि पहले इनिशियली आपके पास ईएमएफ 0 थी, बिकॉज हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो वेरी नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे 0 थी। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स 0 से मैक्सिमम गया और उसने किक किया एक साइड राइट साइड पे, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स मस्ट चेंज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लाइक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ ही नहीं। एक ही दफ़ा चेंज हुआ, इसके बाद इट वाज कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एसी नहीं डीसी सप्लाई है, इसीलिए इट देन किक्स बैक टू 0 अगेन। सो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं द ग्राफ शोज अ वोल्टेज आउटपुट ऑफ एन एसी जनरेटर विद पीक्स एंड जीरोस करेक्टली लेबल्ड। तो बेटा एसी जनरेटर की जो आउटपुट होती है दैट इज सी, ठीक है, और यहाँ पे जीरोस, अच्छा यहाँ पे जीरोस उसने गलत मेंशन किए हुए, सो इट शुड बी डी। यहाँ पे
यहाँ पीक्स है एंड दीज आर द जीरोस। तो 37 का बेटा डी आंसर होना चाहिए। 38. Three students are describing the structure of an atom. Student 1, all the positively charged particles are in the nucleus. The positive electrons are in the nucleus. The negative electrons orbit the nucleus. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है पॉजिट्रॉन। तो नॉर्मली पॉजिट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होते, ये ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी निकलते हैं। तो हर वक्त पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो 38 का आंसर बेटा सी होना चाहिए। और वैसे भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो एग्जामिनर ने दे दिया है, लेकिन आपको जो आपके सिलेबस का हिस्सा है यू हैव टू स्टिक टू दैट सिलेबस ओनली। 39 is when alpha particles are incident on a thin metal foil, most of them pass through undeviated. What does this observation reveal about the nature of the atom? इसका मतलब ये है कि एटम जो है वो 99.99% empty है। The atom is mostly empty space. And the last question is a laboratory. A worker measures the count rate from the radioactive source. He records his results in a table. The average background radiation in the laboratory is 8 counts per second. What is the half-life of the source? अब देखें हमारे पास शुरू में काउंट रेट कितना है 100, तो यहाँ बैकग्राउंड कितना है 8, तो 100 minus 8 is how much 92. So 92 का हाफ क्या होता है 2, which means the answer is what 46. तो 46 के अंदर दोबारा हम क्या चीज़ ऐड करेंगे जो हमने माइनस किया था, इट वाज व्हाट 8, तो मेरा आंसर क्या है 54। तो 54 के रिस्पेक्टिव आपके पास कितना टाइम आ रहा है 2, तो बेटा हाफ लाइफ कितनी होगी 2, क्योंकि ये काउंट रेट है तो इट शुड बी 54। हमने इस तरह के क्वेश्चन के अंदर पहले बैकग्राउंड माइनस कर लेना होता है, फिर कैलकुलेशंस करनी होती हैं, फिर अगेन हमने वो बैकग्राउंड ऐड कर लेना होता है, फिर उसके रिस्पेक्टिव टाइम निकालना होता है, ठीक है बेटा। So this is all about this paper. Do you have any question? You may ask please.